Hello students, first of all good morning to all of you. Hope you are doing well at your home and also you are doing well in your studies. I am Abhishek Kumar Gupta, your English teacher. Today welcomes you all and hope you are all well at your homes. And since I am doing your supplementary reader book snapshots and I taught you about I am teaching you the lesson number 4, Albert Einstein at school, and we have done some parts of this chapter. Today we will try to complete the chapter, complete the lesson, and we will see what happens next. Okay, what is going to happen. Okay, and today we will continue from the page number 30. Page number 30. Earlier we have discussed that Einstein had taken the reference letter, you can say reference letter from the doctor that he is very much ill and he does not want to continue the school and he should be granted the permission to leave the school for 6 months, which the doctor Ernst Well has given him. Okay, so let us continue. Okay, from page number 30, when Einstein gets the letter, the reference letter, the permission letter from the doctor, which is the friend of the यूरी के जो दोस्त हैं डॉक्टर अर्नस्ट वेल, उन्होंने उनसे परमिशन लेटर दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है, रिकमेंडेशन लेटर दे दिया है कि आप कैरी कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, आप इस स्कूल में नहीं करेंगे, आप 6 महीने के लिए आपको लीव दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है, और आइंस्टीन वो रिकमेंडेशन लेटर लेके आते हैं अपने दोस्त यूरी के पास. ओके, सो फ्रॉम पेज नंबर 30. ओके, isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. Okay, isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए, सर्टिफिकेट कैसा है, कैसी सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जो रिकमेंडेशन लेटर जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, अर्नस्ट वेल ने जो रिकमेंडेशन लेटर आइंस्टीन को दिया है कि आप इसके बेसिस पे आप जो है लीव ले सकते हैं, आपको लीव ग्रांटेड हो जाएगी. ओके, तो isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine. यूरी क्या रिप्लाई करता है, yes it's fine. वो तो कहेगा ही, उसका दोस्त है. Yes it's fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. So it's a good period. 6 months is a good period. 6 months का लीव उनको उस रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू 6 months के लीव मिल रहा है. सो यूरी क्या बोलता है, इट्स फाइन. यूरी अग्रीड. ओके, 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. Okay, यदि स्थिति मतलब बहुत बुरी हो जाती है, यदि ऐसा कुछ होता है कि तुम गए इस रिकमेंडेशन लेटर के बेसिस पे और तुम्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो तुम फिर से वापस बैक आओगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो. क्यों? क्योंकि डॉक्टर का रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारे पास है. द डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड दैट द आइंस्टीन शुड बी गिवन परमिशन to discontinue his studies for this 6 month period, and after that he can continue the his study, his education, because it seems तो रिकमेंडेशन लेटर में हमें दिखा, मतलब रिकमेंडेशन लेटर में होता है, डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन लेटर किसके बेसिस पे देते हैं, बिकॉज एट द बेसिस ऑफ योर इलनेस. आपके पास इलनेस है, क्या, नर्वस ब्रेकडाउन. आइंस्टीन को ऐसा मतलब है कि वो अगर अपनी स्टडीज़ ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे इस बोरिंग वे में, जहाँ उनको साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहाँ वो हिस्ट्री और इन सब क्लासेस में एंगेज है, जहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इज़ नॉट फीलिंग गुड, तो इमीडिएटली उनको मीन्स ही विल हैव हिज नर्वस ब्रेकडाउन. ओके, सो इसके बेसिस पे वो 6 महीने की लीव मिल रही है. और यूरी क्या बोलता है कि इस रिकमेंडेशन लेटर के बेसिस पे आप 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास एक लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर, आपके पास एक प्रूफ है. ओके, देन व्हाट द रिप्लाई ऑफ आइंस्टीन. आइंस्टीन क्या जवाब देते हैं, I will never go back to that place. To that place means to this school. Okay, I will never go back to that place. Albert assured him. Means Albert is assuring Yuri that after this I will never come back to this place. Means this school. I will never come back. Okay, मैं इस स्कूल में कभी नहीं आऊँगा. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it.
मैं ये रिकमेंडेशन लेटर आज टीचर के पास, हेड टीचर के पास ले जा रहा हूँ एंड आई विल फिनिश इट ऑल टुडे। ओके, आज सारी चीज़ें मतलब जो है, सॉरी देयर वाज ए स्मॉल इंटरप्शन। ओके, आई होप रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, then Einstein says, I will never go back to that place. Albert assured him, I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. और सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। मीन्स आई विल डिसकंटिन्यू माई स्टडी एट दिस प्लेस, मीन्स आई विल नेवर कम बैक टू दिस प्लेस। आई विल गो टू द इटली एंड आई विल गेट एडमिटेड इन सम इंस्टीट्यूट और इन अ यूनिवर्सिटी। ओके, एज वी हैव सीन अर्लियर, मीन्स व्हाट इज द प्लान ऑफ द आइंस्टीन। ओके, don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. Okay, don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी क्या रिमाइंड करता है कि ठीक है, ओके, यूरी तो उसको हर जगह एक तरह से हेल्प भी करता है एंड इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ हेल्पिंग मीन्स यूरी इज़ हेल्पिंग नेचर। कितना हेल्पिंग नेचर का यूरी है, वो हमेशा उसको हेल्प करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। सो अ ट्रू क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंड। ओके, सो लाइंस, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टर्स को कैसे एनालाइज करते हैं, उनके एक्शन के थ्रू किसी भी वर्क में, किसी भी स्टोरी में या किसी भी लिटरेरी पीस में हम किसी कैरेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि वो कैरेक्टर हमारे सामने लाइवली तो नहीं है, हम उस कैरेक्टर को कैसे जानते हैं, उसके एक्शंस के थ्रू, उसके वर्ड्स के थ्रू और उसके एटीट्यूड, उसका क्या वो सोचता है। ओके, वही हमारा एक बेसिक पॉइंट होता है जिससे हम पता लगाते हैं। और इस स्टोरी में यूरी का एक जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, हमेशा उसको आइंस्टीन को असिस्ट करता है। वो आइंस्टीन को समझता है कि आइंस्टीन इज इन द प्रॉब्लम एंड ही डज नॉट लाइक द वे वी द एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग ऑन इन दिस स्कूल एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड person and he wants to continue studies in the scientific things. He is a very, his temperament, आइंस्टीन का टेम्परामेंट कैसा है, स्वभाव कैसा है, वेरी मच साइंटिफिक, वो साइंटिफिक है। ठीक है, चीज़ों को लेकर, चीज़ों को जो उनका एटीट्यूड है वो अलग है। ओके, इन दिस वे हम देख सकते हैं कितना केयरिंग नेचर का है यूरी। बहुत कम ही ऐसे दोस्त होते हैं जो समझते हैं हमें। ओके, द मीन्स वी हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स हु अंडरस्टैंड्स अस एंड हु हेल्प्स अस इन और बैड एंड ऑड सिचुएशंस। ओके, ऑड सिचुएशंस में हेल्प करने वाले बहुत कम ही दोस्त होते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, और वो दोस्त तो स्पेशली कम होते हैं जो हमें, वैसे तो सारे दोस्त हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ही दोस्त होते हैं, फ्यू ऑफ फ्रेंड्स, वेरी फ्यू फ्रेंड्स आर देयर जो आपके मेंटल मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है उसको भी समझते हैं और आपको आपकी हेल्प करते हैं। ओके, सो यूरी इज ऑफ दैट नेचर, यूरी उस नेचर का है। तो यदि यूरी का कैरेक्टर एनालिसिस पूछे कभी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस हम संदर्भ को बोलते हैं। मतलब यहाँ रेफरेंस का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स टीचर से आप एक रेफरेंस लेटर ले लीजिएगा, उनसे भी रिकमेंडेशन ले लीजिएगा कि यस यू आर रेडी टू परस्यू स्टडी इन द हायर इंस्टीट्यूशंस। ओके, इन द यूनिवर्सिटीज और इन द कॉलेजेस। ओके, यूरी रिमाइंडेड हिम। देन नेक्स्ट we have another character, Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. So immediately we see that the reference letter about which Yuri is talking about, Yuri जिस बारे में बात कर रहा है, okay, कि तुम्हें रेफरेंस लेटर मिस्टर अपने मैथमेटिक्स टीचर से लेना चाहिए, तो वो मैथमेटिक्स टीचर का मेंशन यहाँ पे हो रहा है। मैथमेटिक्स टीचर का नाम क्या है, मिस्टर कोच, KOCH। ओके, मिस्टर कोच विलिंगली मीन्स अब यहाँ से भी हम ट्रेस कर सकते हैं कि अब देखिए दो चीज़ें हैं, अभी तक अन्य टीचर्स का एटीट्यूड क्या रहा है, फिर डॉक्टर का एटीट्यूड क्या रहा है आइंस्टीन को समझने में, उनके टीचर मैथमेटिक्स टीचर जो अभी ये नेक्स्ट ये जो कैरेक्टर हैं स्टोरी में, उनके हम मेंटल एटीट्यूड को समझेंगे कि उनका एटीट्यूड क्या है आइंस्टीन के नज़रिए, आइंस्टीन के लिए, और नेक्स्ट हम प्रिंसिपल को भी देखेंगे। ओके, फर्दर इन द स्टोरी। ओके, मिस्टर कोच विलिंगली गिव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच क्या करते हैं, वो विलिंगली मतलब ऐसा तो होता है जानबूझकर, अगर हम मतलब लिटरल मीनिंग ले, कहने का मतलब विलिंगली मतलब आउट ऑफ हिज विल। ओके, अपने खुद की इच्छा से उन्होंने रेफरेंस लेटर दे दिया जो आइंस्टीन को चाहिए होता है। अब वो रेफरेंस लेटर क्या है हम देखते हैं। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? Will that be all right that if I write in that reference letter that I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, that will that be all right?
समझ सकते हैं, यानी यहाँ लिटरल मीनिंग क्या है, आइंस्टीन के टीचर मिस्टर कोच क्या बोलते हैं कि यदि मैं ये लिख दूँ या ये कह दूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू एनी मोर, अब मैं इस लड़के को मतलब आइंस्टीन को अधिक नहीं पढ़ा सकता, और प्रोबेबली मतलब इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि आइंस्टीन ही मुझे पढ़ाने लगे। ओके, आइंस्टीन विल एबल टू टीच मी, आइंस्टीन ही मुझे पढ़ा दे। मतलब यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि आइंस्टीन कितने टैलेंटेड हैं, एंड ही हैज़ स्टडीड ऑल द मैथमेटिक्स विच वाज टॉट एट द स्कूल। सो अर्लियर हमने देखा ही था। सो टीचर खुद बोल रहे हैं। सो ये एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कमेंट है एक टीचर का एक स्टूडेंट के लिए, और बहुत बड़ा उसके लिए सम्मान की बात है स्टूडेंट के लिए कि टीचर अगर ऐसा कहे कि मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकता, और ये शायद ऐसा हो जाए कि तुम ही मुझे कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद तुम ही मुझे पढ़ाने लगो, तो हम उस स्टूडेंट के टैलेंट को देख सकते हैं। ओके, और यहाँ टीचर का एटीट्यूड भी हम देखेंगे, मिस्टर कोच कैसे थे उस स्कूल में। He asked, what asked? That if I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. That is saying too much, sir. That's saying too much, sir, said Albert. तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर टीचर ऐसा कहेगा कि तुम ही मुझे पढ़ाने लगोगे और तुम ही मुझे सिखाने लगोगे, तो क्या रिप्लाई हो सकता है किसी का, हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आइंस्टीन बोलते हैं दैट इज सेइंग टू मच, सर। सर ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही होगा। दैट विल बी द सॉरी दैट विल बी मीन्स ओवर स्टेटमेंट। ओके, ओवर स्टेटमेंट होगा। दैट विल बी हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। हाइपरबोलिक मतलब ये अतिशयोक्ति ही होगी अगर ऐसा आप कहेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। इट्स ओनली द ट्रूथ, इट इज़ द ओनली ट्रूथ। ओके, इट्स ओनली द ट्रूथ, बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो टीचर क्या बोलते हैं कि नहीं यही सच है। सो यहाँ हम देखते हैं कि उसी स्कूल में जो सिस्टम आइंस्टीन को समझ नहीं पा रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम का आइंस्टीन समर्थन नहीं कर रहे हैं, मीन्स द एजुकेशन सिस्टम विच आइंस्टीन इज प्रोटेस्टिंग एंड द टीचर्स आर प्रोटेस्टिंग आइंस्टीन एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आइंस्टीन्स मीन्स मेंटेलिटी, बट हेयर इज ए टीचर who is very much you can say very much liberal and he knows the talent which Einstein has. okay, आइंस्टीन के पास जिस तरह का टैलेंट है और वो जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने में इस टीचर का भी योगदान है, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को कि नहीं आइंस्टीन को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इनको हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इन्हें ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे, हम जितना सिखा सकते हैं उससे अधिक ये कहीं जानते हैं और ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ओके, सो यहाँ टीचर का एरोगेंट जो नेचर है वो भी उस मिस्टर कोच में नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं ये सच बात है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि तुम ही मुझे कुछ दिन बाद सिखाने लगोगे, तो ये ये कोई गलत बात नहीं होगी, इट इज़ द ट्रूथ, ये सच बात है। बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है, ये तो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको देने ही पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच आइंस्टीन विल गेट एडमिटेड इन द हायर इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन के लिए उनको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। It was still a glowing reference. Okay, it was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. Okay, so it was still a glowing reference. अगर टीचर भी कोई ऐसा कहे तो glowing मतलब ये भी एक glowing reference होगा, ये अच्छा reference होगा। वैसे glow मतलब चमकता हुआ, लेकिन यहाँ सेंस ये है कि glowing reference होगा। And Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो मिस्टर कोच ऐसा मतलब वो ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है, अभी हमें आगे पता चलेगा कि made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. यहाँ हम देखते हैं कि हायर इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वो कुछ ऐसा रेफरेंस देंगे जिससे आइंस्टीन को ईजिली ही कुड गेट एडमिटेड। ओके, उनको एडमिशन मिल जाए आइंस्टीन को। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। ओके, आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड मीन्स मिस्टर कोच सेड। मिस्टर कोच क्या बोलते हैं कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस। अब देखो टीचर बोल रहे हैं, यानी टीचर भी आइंस्टीन को समझते हैं। सो देयर इज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी वो मैथमेटिक्स के टीचर उस स्टूडेंट को समझते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को समझते हैं दैट ही इज़ वेरी मच टैलेंटेड एंड ही शुड गिवन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन विदाउट कंप्लीटिंग हिज डिप्लोमा। ओके, तो ये एक आदमी का आदमी से जो रिलेशन है, टीचर का एक जो शिष्य से रिलेशन है, वो यहाँ दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे दुख है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो या तुम हमें छोड़ रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, लेकिन बात ये भी है कि तुम अपना टाइम भी वेस्ट करोगे मेरे क्लास में, बिकॉज यू आर द टैलेंटेड पर्सन एंड यू नो ऑल द थिंग्स विच आई कैन टीच यू। ओके,
It's almost the only class where I am not wasting my time. So Einstein भी out of modesty. Out of modesty means जैसे यदि हमें कोई कुछ अच्छे कमेंट्स दे रहा है या हमारा केयर करता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका भी ऐसा शो करें, क्योंकि कभी कभी शो करना भी ज़रूरी है। तो वो शो करते हैं कि नो सर, इट इज़ द ओनली क्लास वेयर आई एंजॉय अटेंडिंग द क्लासेस। यही केवल एक क्लास है मैथमेटिक्स की जो मैं इंजॉय करता हूँ इस स्कूल में। तो खैर, जिसकी जहाँ रुचि है वहीं इंजॉय करेगा, और होना भी यही चाहिए। अगर जो आप काम कर रहे हैं अगर उसको लाइक नहीं करते हैं, इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट यू डू, इफ़ यू आर नॉट लविंग व्हाट यू डू, देन दिस इज सीयर वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ओके, आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड, टीचर सेड, मिस्टर कोच सेड, it's almost the only class where I'm not wasting my time. Okay, it is the only class where I'm not wasting my time, अल्बर्ट said। मतलब आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि सर यही केवल एक क्लास है जहाँ मैं अपने टाइम को वेस्टेज नहीं समझता हूँ। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, आई एम लिविंग सर। तो आइंस्टीन बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला कि मैं लीव कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो ये ऐसे हम सेंटेंस को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, उलट भी सकते हैं कि अदरवाइज यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे इस रेफरेंस, ये जो रेफरेंस लेटर जो तुमको मुझसे चाहिए वो तुम मुझसे मांगते नहीं। ये तो एकदम ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है कि तुम यहाँ मतलब अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना है, आगे जाना है मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए और साइंस को पढ़ने के लिए, और यहाँ वो चीज़ें हैं नहीं और तुम हमेशा निराश ही रहते हो। सो यहाँ से हम देख सकते हैं द नेचर ऑफ द टीचर। ओके, मिस्टर कोच का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टराइजेशन को हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे पास रेफरेंस के लिए नहीं आते कि सर ये मुझे आप एक रेफरेंस लिख के दे दीजिए ताकि मैं उसके बेसिस पे हायर इंस्टीट्यूशन में जा सकूं। आई थॉट यू वुड वॉन्डर, ओके, इनकम्प्लीट सेंटेंस, डॉट डॉट डॉट, ओके, इनकम्प्लीट सेंटेंस। जैसे हम कोई बात करते हैं, मैंने सोचा, तब तक वो अगला स्टेटमेंट आता है। सो आई थॉट यू वुड वॉन्डर। तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं, सर मुझे लगा कि आपको आश्चर्य होगा या आप दुखी होंगे कि मैं जा रहा हूँ। देर इज़ नथिंग टू वॉन्डर अबाउट। ओके, तो टीचर को सारी चीज़ें पता है, आइंस्टीन की मनोदशा, आइंस्टीन की मेंटालिटी उनको पता है कि आइंस्टीन क्या सोचते हैं, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो ये एक टीचर का एक ये क्या कह सकते हैं, ह्यूमन जो साइड है, एक जो मानवीय पहलू है, उस पर हम देखते हैं। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, आई थॉट यू वुड वॉन्डर। तो टीचर क्या बोलते हैं, देर इज़ नथिंग टू वॉन्डर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। ओके, तो वो क्या बोलते थे, मैं ये जानता हूँ, आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था, यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, तुमसे पहले ही मैं चीज़ें जानता था कि तुम यहाँ छोड़ने वाले हो, तुम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लास में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम भी जानते हैं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हैं और उसकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे हमें पता है कि ये बहुत आगे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हालांकि सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बट सम स्टूडेंट्स आर वेरी मच टैलेंटेड। तो टीचर्स पहचान जाते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसको आगे जाना चाहिए। ओके, हम भी रिकमेंड करते ही हैं। तो खैर वो तो टीचर थे, तो हम समझ सकते हैं कि एक टीचर जो हिस्ट्री टीचर थे वो कैसे कर रहे हैं कि तुम्हें स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन वो एक निगेटिव कमेंट था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कमेंट है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, यू शुड गो टू द हायर एजुकेशन, हायर इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो मिस्टर कोच का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ हमें दिखता है कि वो काफ़ी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पर्सन थे, ही वॉज ए वेरी गुड पर्सन। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। अल्बर्ट, भाई वो भी तो बच्चे ही थे, तो अल्बर्ट वॉज पजल्ड। पजल्ड मीन्स इन ए सिचुएशन वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स। पजल से बना हुआ है, पजल मतलब पहेली, और पजल्ड यहाँ वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। समटाइम्स नाउन इज चेंज इनटू द वर्ब। ओके, पजल्ड मीन्स एक तरह से घबरा जाना, या इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो वो टीचर ने जो स्टेटमेंट बोला कि मैं तुमसे पहले ही जानता था कि तुम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे एंड यू आर गोइंग टू लीव, तो अल्बर्ट समझ नहीं पाता कि सर ने पहले कैसे, मुझसे पहले कैसे जान लिया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या था। ही सून फाउंड आउट, और जल्दी ये टीचर अल्बर्ट को पता लगा कि कैसे टीचर को पता चला। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। अब देखिए, अभी हमें एक टीचर के बारे में पता चला कि वो क्या सोचते थे अल्बर्ट के बारे में, कैसे समझते थे। अब हम हेड टीचर को देखेंगे। ओके, तो इमीडिएटली जब उन्हें ये चीज़ें पता चली कि टीचर को कैसे समझ में आया या क्या होने वाला है, जब उन्हें कैसे पता चला, बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। अब हेड टीचर उनको समन करते हैं, समन मतलब बुलाना। ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, हेड्स रूम में बुलाया गया, जैसे कभी कभी हमें हेड रूम में बुलाया जाता है। ओके, प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है। ओके, वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। तो अल्बर्ट को लगा कि चलो बढ़िया ही हुआ
कि मुझे रेफरेंस लेटर जाके देना पड़ता, फिर प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, फिर मुझे 1-2 घंटे बाद बुलाया जाता। तो टीचर ने मेरे लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दिए, मिस्टर कोच ने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, एंड इट हैज़ सेव 1 or 2 hours ऑफ आइंस्टीन। ओके, आइंस्टीन का 1-2 घंटा बच गया। ओके, he hardly bothered to wonder why he had been sent for. He hardly had to wonder why he had been sent for. Sent for मतलब बुलाया जाना या किसी को कॉल करना, to call. ओके, उन्हें क्यों बुलाया गया है इस चीज़ को लेकर वो अभी मतलब उन्हें सोचना नहीं पड़ा। हार्डली बॉदर टू वंडर मतलब उन्हें इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, मतलब कोई परेशानी नहीं थी कि क्यों उन्हें बुलाया गया। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। वेगली मीन्स मतलब नॉट क्लियरली, लेकिन वो क्लियर नहीं थे कि हो सकता है उन्हें पनिशमेंट मिले फॉर हिज लेजीनेस एंड फॉर हिज बैड वर्क। तो आइंस्टीन अपने अदर हो सकता है स्कूल के जितने भी होमवर्क ये सारी चीज़ें होती होंगी वो मतलब जो डेस्टिन टाइम होता होगा उस पर सबमिट नहीं कर पाते होंगे, तो उसकी वजह से वो सोच रहे हैं। बट इट इज़ वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, विच इज़ नॉट क्लियर, विच इज़ नॉट डेफिनेट। ओके, तो उन्हें ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि क्या वो पनिशमेंट ऐसा तो नहीं है कि हेड रूम में बुलाया जा रहा है तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, ही वुड बी पनिश्ड। ओके, सो ही इज़ थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट्स सरप्राइज। सो टू अल्बर्ट्स सरप्राइज, अल्बर्ट्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। टू अल्बर्ट्स सरप्राइज हेड टीचर सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई सज़ा देने नहीं जा रहा हूँ। No, I'm not going to punish you. Your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer. So यहाँ टीचर का कमेंट कैसा है कि I'm not your work is terrible, मतलब ये तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ है, तुम्हारे वर्क्स हैं बहुत टेरिबल है। टेरिबल मीन्स बहुत भयंकर है, भयानक है, बट इन अ निगेटिव सेंस। वैसे टेरिबल मतलब डरावना होता है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं अब इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि तुम यहाँ रहो। ओके, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, और मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल अभी छोड़ो। लीव स्कूल नाउ, अब आइंस्टीन देखिए क्वेश्चन मार्क, लीव स्कूल नाउ क्वेश्चन मार्क। रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड मतलब काफ़ी मतलब चकित हो जाना या काफ़ी मतलब इन अमेज्ड मैनर, जैसे हम कभी कभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि क्या स्कूल छोड़ दूँ मैं। लीव स्कूल नाउ, दैट इज़ व्हाट आई सेड। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश पर्सन्स कैसे बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सेड, हाँ तुमने ठीक सुना, मैंने यही कहा। यू मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। अल्बर्ट क्या बोलते हैं कि सर क्या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, एम आई एक्सपेल्ड, क्या मुझे स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है। सॉरी, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। अब देखिए ये टीचर का रिप्लाई कैसा है, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन। आइंस्टीन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है, यू आर बीइंग एक्सपेल्ड, देन टेक इट इन दैट वे। ठीक है, ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझो। The head teacher was not mincing words. Mincing words means he was not means you can say mixing words means मतलब ऐसे तो होता है कि स्मॉल पीसेस में काटना और उसको ग्राइंडर मशीन में जो ग्राइंड करके हम मिंसिंग करते हैं उस वे में। बट हेयर दैट मीन्स हेयर द मीन्स एक्सप्रेशन इज दैट, द मीनिंग इज दैट द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, मतलब वो मिक्स नहीं कर रहे थे। मीन्स ही वॉज वेरी मच क्लियर दैट आइंस्टीन इज़ टू बी एक्सपेल्ड। ओके, आइंस्टीन को क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ स्कूल से निष्कासन होता है तुम्हारा, तुम्हें निकाला जाता है। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स अपने ही एग्रीमेंट पे, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन तुम यहाँ से जाओ अपने एग्रीमेंट पे, तुम्हें जैसा लगे यहाँ से तुम चले जाओ। यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल राइट नाउ। एंड देन द क्वेश्चन वांट अराइज, और कोई क्वेश्चन नहीं उठने वाला है, मतलब कोई तुमसे मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हें क्यों निकाला जा रहा है, तुम क्यों कोई क्यों नहीं पूछेगा, मैं भी नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी, तुम खुद भी जा सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हेड प्रिंसिपल कैसे बच्चे को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। ओके, और उसी एट द सेम टाइम मिस्टर कोच इज़ देयर, उनका रिप्लाई कैसा है, दोनों का कंपेयर हम कर सकते हैं। ओके, बट सेड अल्बर्ट, अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि अल्बर्ट बस एक फॉर्मेलिटी शो कर रहे हैं कि सर आई एम वेरी मच मीन्स सैड दैट आई एम बीइंग एक्सपेल्ड। ओके, बट इन साइड ही इज़ वेरी मच ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके, बट सेड अल्बर्ट व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड। अल्बर्ट क्या बोलते हैं, सर मैंने क्या क्राइम किया है कि मुझे पनिश किया जा रहा है, मुझे एक्सपेल किया जा रहा है स्कूल से।
योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। तो ये क्या देखिए यहाँ क्या इनका रिमार्क है कि तुम्हारा जो प्रेजेंस है स्कूल में, तुम्हारी जो उपस्थिति है उसकी वजह से अदर टीचर्स और अदर पीपल्स मीन्स अदर स्टूडेंट्स, अदर जो शिष्य हैं, जो मतलब पीपल्स मतलब शिष्य या स्टूडेंट्स, वो डिस्टर्ब होते हैं। सो एक जगह हम देखते हैं कि मिस्टर कोच क्या कहते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंस यहाँ पे तुम्हारे लिए खतरनाक है और तुम्हें अपने हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाना चाहिए। और यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं, हेड प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि योर प्रेजेंस डिस्टर्ब्स अस, हमें डिस्टर्ब करता है क्योंकि तुम पढ़ने नहीं देते हो, तुम खुद भी नहीं पढ़ते हो। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, ओके, यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम पढ़ने से इनकार करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स विद्रोह करना। जो सिस्टम है, रेबेलियन मीन्स जो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उस पर न चल के अपने अलग नियम कानून बनाना। तो कुछ रिबेलियस पर्सन होते हैं जैसे बिरसा मुंडा या भगत सिंह, ये सब रिबेलियस थे, ओके, क्योंकि इस्टेब्लिश्ड जो आइडियाज़ थे उस पर न चल के वो अलग चलते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत तरीके में था, वो सही तरीके का, मतलब हो सकता है आपका तरीका जो आपने इस्टेब्लिश किया वो गलत हो और उसके विरोध में हमने कुछ नया चीज़ बताया कि नहीं सर ऐसे चीज़ें नहीं हो के ऐसे होनी चाहिए, ओके। जैसे हमारे यहाँ जब हमारा देश गुलाम था तो कई सारे रेबेल हुए, ओके, रेबेल पर्सन हुए, रेबेलियंस हुए। सो दैट वाज नॉट इन द रॉन्ग वे, वो रॉन्ग वे में नहीं था, वहाँ रेबेलियन का सेंस पॉजिटिव था कि नहीं अगर आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जो गलत है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ओके। सो इन दैट सेंस रिबेलियन, यू आर इन ए कॉन्स्टेंट रिबेलियन, तुम हमेशा विद्रोह ही करते रहते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी सीरियस काम नहीं किया जा सकता है यदि तुम यहाँ नहीं होगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि सॉरी आइंस्टीन जब वहाँ से निकले तो कौन सा सीरियस काम उन्होंने किया और पूरी दुनिया के आइडियाज़ कैसे चेंज कर दिए, ओके। सो देयर ये एक कंट्रास्ट ही है जो प्रिंसिपल बोल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को, ओके, कि योर प्रेजेंस इन द क्लास इज ए कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। जब तक तुम यहाँ हो तो कोई सीरियस वर्क होने वाला है नहीं। लेकिन ये तो आइंस्टीन के लिए बढ़िया है कि वहाँ से बाहर जाएँ ताकि वो सीरियस वर्क कर सकें अपने फील्ड में, साइंस फील्ड में। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू, कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई जब खुद प्रिंसिपल ने निकाल दिया। उनको कोई बहानेबाजी भी नहीं करनी पड़ी, उनको कोई रिकमेंडेशन लेटर भी सबमिट नहीं करना पड़ा कि मैं बीमार हूँ, मुझे 6 महीने के लिए छुट्टी दी जाए ताकि मैं स्कूल लीव कर सकूँ। वो सारी चीज़ें अपने आप ही कंटिन्यू हो गई, ओके। अल्बर्ट फिल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। तो जैसे लग रहा था कि कोई जला हुआ चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट वो किसी जलते हुए वस्तु की तरह था जो उनके पॉकेट में लग रहा था कि मुझे पॉकेट में जल रहा है, ओके, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने इतनी सारी व्यवस्था की, यूरी ने उनका हेल्प किया, उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने भी उनको रिकमेंडेशन लेटर दिया, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स वे आर इन वेन मीन्स बेकार चली गई। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे। अब देखिए अल्बर्ट अपने मन की बात बोलते हैं कि आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, सर वैसे भी मैं छोड़ना ही वाला था। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन। तो बोलते हैं ओके तब तो हम अग्रीमेंट में ही हैं, ठीक है, तब तो हम अग्री करते हैं एक दूसरे के लिए कि चलो ठीक है मैं भी चाहता हूँ तुम भी चाहते हो, ठीक है छोड़ ही दो। द हेड सेड फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। अब छोड़ते छोड़ते स्कूल अल्बर्ट क्या सोचते हैं, अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड मीन्स अल्बर्ट वॉज थिंकिंग दैट मीन्स वो सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूँ इस स्कूल के बारे में और इस स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ और आपके बारे में क्या सोचता हूँ, ये कहना चाहते थे। मीन्स सम नेगेटिव कमेंट्स वर देयर बट देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने ऐसा रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉक्ड आउट मीन्स टू लीव, एकदम टू इन अ हॉटली मैनर, यू कैन से इन अ वेरी प्राउड मैनर, वो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई एक वर्ड कहे। होल्डिंग इज हेड हाई, पूरा गर्व से अपना, होल्डिंग इज हेड हाई, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये लाइन्स हमें याद आती हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो उसी मैनर में होल्डिंग इज हेड हाई, पूरे सम्मान के साथ, पूरे गर्व के साथ, ही स्टॉक्ड आउट, बाहर निकल गए, फ्रेज है, ही स्टॉक्ड आउट, बाहर निकल गए, मतलब पूरे गर्व के साथ ऐसे बाहर चले गए, निकल गए। ही वॉकड आउट, शट द डोर आफ्टर यू, साउटेड द हेड चिल्लाते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अब अल्बर्ट सुनने वाले कहाँ थे, अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, उन्होंने इग्नोर कर दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, सीधे चलते ही गए, आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। सो जो 5 साल उन्होंने गुजारे थे वो मिजरेबल ईयर्स थे, मीन्स काफ़ी कष्ट मतलब वी कैन से कष्टदायी थे उनके लिए। मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग गुड टाइम देयर एंड ही वॉज मीन्स फीलिंग बोर्ड, ओके। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक,
एक लास्ट लुक के लिए, मतलब जैसे हम लोग कभी कभी कहीं चीज़ से जाते हैं, जैसे यादें जुड़ी होती है तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, सीधे स्ट्रेट वॉक कर गए, वॉकआउट कर गए. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. So here is a statement, these are the statements through which we can infer, through which we can estimate that Einstein was not feeling well at that school and he was very much upset at that school. So कोई भी ऐसा नहीं था, he could not think of anyone, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सके जिससे वो गुड बाय कह सके उस स्कूल में. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. So indeed, लेकिन वास्तव में Yuri was almost the only person in Munich. म्यूनिक में यूरी ही केवल एक ऐसा आदमी था. He felt like seeing before, जिसे अल्बर्ट को लगा कि उसे मुझे मिल लेना चाहिए म्यूनिक छोड़ते हैं, क्योंकि अब म्यूनिक में पढ़ते थे, अब वहाँ से छोड़ रहे थे, वो इटली जा रहे थे, मिलान में, इटली या मिलान जो वहाँ जहाँ भी हो जाते. Like seeing before, he felt that he left the town he had come to hate almost as much as the school. तो जितना वो स्कूल से नफरत करते थे उतना वो उस शहर से भी नफरत करते थे. Sometimes we go somewhere but we are not in the state to love that place. कभी कभी होता है हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें कुछ जगह अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं अच्छी लगती हैं, हम उससे कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं. So in that way Einstein was not able to connect with the Munich, the city Munich. म्यूनिक से कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं. एंड ही हैड नो अदर एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, और एल्सा बर्लिन में वापस चली आई थी. एल्सा कौन है? उनकी कजिन है जो उनसे मिलने कभी कभी म्यूनिक में आती हैं क्योंकि उनका फादर का बिजनेस है वहाँ पे. और एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, वो तो बर्लिन में चली गई थी, तो कोई नहीं था जिसे वो गुड बाय कर सके बजाय सिवाय यूरी की. ओके. एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उनके कोई अदर रियल फ्रेंड्स भी नहीं थे. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. तो यूरी क्या बोलता है? गुड बाय एंड गुड लक. At last he is about to leave. Einstein is about to leave the Munich, to leave the school. He is about to leave the school. स्कूल छोड़ने वाले हैं. And at the same time म्यूनिक भी छूट जाएगा, म्यूनिक को भी वो उस शहर से चले जाएंगे. तो यूरी क्या बोलता है? यूरी, here is Yuri. He says goodbye and good luck said Yuri when he left. जब आइंस्टीन जाते हैं तो ये उनको ग्रीट करता है that goodbye and good luck. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक. तो यूरी क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम अच्छा कर सकोगे. एंड आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. सो एक ट्रू फ्रेंड की निशानी है ये. देयर इज़ अ गुड सिंबल, इट इज़ अ गुड सिंबल ऑफ अ ट्रू फ्रेंड हु अंडरस्टैंड्स यू, हु नोज यू. ओके. I hope you will be happier there. So the closing statement is I hope you will be happier there. So स्टार्ट में क्या था कि आइंस्टीन को हमने देखते थे वो खुश नहीं है वहाँ पे, बोरियत फील कर रहे हैं. उनका एजुकेशन सिस्टम में, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे, उसमें उनको बिलीफ नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते हैं और वो दुखी हैं. लेकिन यहाँ पे यूरी क्या कर रहा है? फ्यूचर के लिए उन्हें बेस्ट विशेस दे रहा है. एंड आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ खुश रहोगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कैरी ऑन करोगे. और एज वी नो दैट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ, द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, एज वी से, जैसा हम कहते हैं कि द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. बाकी जो है वो तो इतिहास ही है. हमको सभी पता है कि आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन ने क्या किया, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या किया. और ओके. सॉरी. एंड so in this way we have completed the chapter. If you have any comment and if you have any queries, please feel free to comment on my YouTube channel which is being sent by the Arun sir. Okay, I will be there and I will wait for your comments. Hope you enjoyed the chapter. And if you wish, I will also discuss the questions. 3 questions are there. Okay, and I will try to discuss all the questions in detail with you. एंड इट विल बी वेरी मीन्स बहुत अच्छा होता जब यदि आप सारे लोग यहाँ होते. और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग, जैसे स्कूल आपको बुलाया जाएगा आप यहाँ पे आएंगे. ओके, ऑल द बेस्ट एंड होप you study well and you enjoyed the video. Okay, goodbye.